यहाँ पे सर, यहाँ पे यहाँ से यहाँ से सर सेंटर सेंटर हम सेंटर में यहाँ पे सेंटर में आइए ना यहाँ पे सामने This is the first time I'm feeling the kind of excitement I'm feeling, because this is, of course, I'm in the film and I'm an important part of the film. But this thing is that this film is so dear to me because it's been made by such wonderful people, the writers, the directors, and my lovely star cast, who's the main star cast. I'm a part of their film. So I'm really excited for all of us, but I'm mostly excited for my writers, the director, for Kuku FM, who have been so generous and so bold in taking on a subject like a campus zombie horror comedy. Because this, as you know, it's really never been done in this avatar before. So I'm really excited for everybody. Today is like a premiere night. Public hasn't really got to see it yet. There's still 48 hours to go. But fingers are crossed. And honestly, I have a very good feeling. I believe this will be a sleeper hit. And I hope that people come and watch it, because this is something which is a labor of love that's been made in a small budget but with a big heart. So all the best to all of us. So any scene you're looking forward to? I'm looking forward to the entire film, because this entire film is a mad ride. And I remember bits of my part because it was a while ago that I did it. And so of course I want to see myself, that what stupidity did I do now. But I'm mostly looking forward to seeing all the young actors who are going to become stars after tonight, or when it releases on the 15th. So there's no one scene. I think the whole film is something that I'm looking forward to. And I'm really holding my breath, because I believe that I'm going to be proven right, that this is going to be a sleeper hit. So yeah, fingers are crossed. Thank you so much. Basically, we are an entertainment company. Our job is to entertain people. So for us, it's not a lot of difference here. People watch that content on phone or watch that on theatre. Our belief is that people want more and more content, and the current supply of the current ecosystem is not enough. So we need to create more and more and more content. And for that, we are already doing it through microdrama, audio, and now we are entering theatre as well, because we feel there's more than enough demand from the consumer for more content. So now, what are you looking forward to in the film, and what is the most exciting part of the film? Have you seen it? Obviously, I have seen the film multiple times. I am really excited about the kids-centric part of this film, because typically
a big chunk of movies that come out today cater the later parts of our life. But this movie basically is entirely shot during the college days, which I loved in my time. So I am really excited about the being kids part of the movie. सर सो हम क्या जान सकते हैं, ऑडियंस क्या लुक फॉरवर्ड कर सकती है इस फिल्म से? So यार, it's definite. हाँ ठीक है. Oh sorry, I forgot what name. तो यार ये बहुत ही रोमांचक मूवी है with a lot of twists and turns. तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि प्रिडिक्टेबल नहीं होगी मूवी आपके लिए. सर आपने ज़ॉम्बी मूवी बनाना क्यों ये किया एज अ फर्स्ट थिएट्रिकल? तो हमको ये लगता है कि यार वी वांट टू डू समथिंग जहाँ पे कि कंज्यूमर के पास कंटेंट की किल्लत है. मतलब अगर लव स्टोरी हर कोई बना रहा है, एक्शन हर कोई बना रहा है, तो कंज्यूमर के पास बहुत ऑप्शंस हैं ऑलरेडी देखने के लिए. वी वांट टू केटर टू द कंज्यूमर बेस जिनको कि इनफ कंटेंट नहीं मिल रहा है. एंड दैट्स व्हाट वी फेल्ट कि मूवी टारगेटेड टू यंगर पॉपुलेशन विच हैज़ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी ट्रोप्स is what the audience needs, and that's why we built a horror comedy movie. आप एक लास्ट नोट पे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे एंड व्हाट शुड दे लुक फॉरवर्ड टू इन द फिल्म? तो यार हमारी पहली मूवी है थिएटर में, हमारी फटी पड़ी है, तो प्लीज़ बाय मोर एंड मोर टिकट सो दैट हम ये कंटिन्यूसली करते रहें. थैंक यू. Because Kuku has so many subscribers and we see millions of people consuming so much content with us, we've been able to understand the nerve of India. What is it that people want? What is it that is connecting with them emotionally? What is it that they remember and want to treasure? Kuku is one of the biggest platforms in the country as far as personal content consumption is concerned on the mobile phone. And now we want to go into community content consumption. We want to know what it takes to time, take out 4 hours, come to theaters, watch a great film, enjoy it among people, like them, among like-minded people, and that is why this is our first venture to get into that direction. So in my past career, I have been working in the campus space. I have gone to hundreds of these schools, engineering colleges, all kinds of campuses, and I have seen how the life is on campus, how competitive it is, how hyper competitive it is, how it is a zero-sum game, and how everybody is trying to beat each other. And that's not an atmosphere where students naturally thrive, have their talent truly explode. And that is why this is a film that is dedicated to them. Even though it's a zombie film, a zombie is a representation of how a student becomes when he's forced by companies, by teachers, by everybody around them to walk in a straight line rather than doing something they really enjoy. Which is why we came up with this concept. It worked well for us as an audio show on Kuku FM also, which is why we thought that this is something we should bring onto the bigger screen and get more people, more younger people to connect with it. Yes, there is a part that is my favorite, which is when one of the key characters in the story, with the help of AI, is turned into someone else. And that is unique. That hasn't happened in the past because we didn't have AI in the past. And it's even today, not a lot of people have tried it yet. So I'm very proud of that scene, and I'm looking forward to seeing how the audience reacts to it. I just want to tell the audience, have fun. Trust the first director, trust the first time producer. Lot of young kids who get very small roles in shows that are out. And I want them to give this film a chance. Watch the film with your friends, with your batchmates, with people you have shared a lot of fun and a lot of great time with. It's a naughty film, and I hope that it brings out the child in you when you watch this film. Yes. तो बहुत ही एक डायनामिक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. He's a suspended cop who is got into some trouble with the law himself, and he's a very entertaining, very funny character, and I think everyone will really enjoy him.
are looking forward to the movie? I think the audience should really look forward to the fact that the character and the movie is unlike any other movie that's been made, because it's a low-cost zombie comedy set on an engineering college campus, and the way we've made it, the whole crew is young, the whole cast is young, and it's going to be a blast. I'm very excited for what they've made. That's all right. We're done. Thank you. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा है, बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है जैसे आप ज़ॉम्बी जैसा सब्जेक्ट जब आप हैंडल करने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं ना, मैथिकल कैरेक्टर है, आपने बाहर देखा है, बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो हमारे लिए बहुत चैलेंज था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कॉमेडी फिल्म थी, हॉरर और कॉमेडी मिक्स है, तो पूरा वर्ल्ड क्रिएट करने में, उसको शूट करने में क्या कैसे होगा, कब क्या होगा, कितना थ्रेट कब बनाएं, आप जब भी चाहो थ्रेट को इंक्रीज़ कर सकते हो, तो सुपर फन यार, सुपर फन। आई थिंक इंडिया धीरे धीरे रेडी हो रहा है ऐसी फिल्मों के लिए जो, क्योंकि हमारे पास भी अब वो टेक्नोलॉजी है, तो बहुत टाइम तक एक बड़ा गैप रहता था हॉलीवुड फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में, अब वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो आई थिंक कुडोज टू कि उन्होंने एक ऐसे आइडिया पे बेट करा, एक ऐसे आइडिया को सपोर्ट किया जिससे कि एक ऐसी नई फिल्म बन के आई है जो आप सब लोग देखेंगे, और आशा है सबको अच्छी लगेगी। What the audience should look forward to, and any messages that we want to share with the audience who are looking forward to watching it? आई थिंक सबसे बेहतर तो वो ऑडियंस जिसको कुछ नया देखना है, जो सिनेमा को पसंद करती है, जो कॉमेडी को पसंद करती है, वो हमारे इस एक्सपेरिमेंट को, हमारे इस अटेम्प्ट को ज़रूर सपोर्ट करें। वी वांट दोज पीपल टू कम टू थिएटर्स जिनको मसाला पसंद है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिनको कुछ नया देखना है। सो हमें जितना मज़ा ये बनाते हुए आया है, आई एम श्योर कि वो देखने में आपको भी महसूस होगा। सो प्लीज़ कम, एंड 15 मई से थिएटर्स को भर दीजिए। थैंक यू सो मच। Very excited because we haven't seen the film, so yeah, उसका थोड़ा सा डर है बस। बस एक कट ही देखा था हमने छोटा सा डबिंग के टाइम पे, उसी के बाद हम ज़्यादा एक्साइट हो गए थे कि अब फुल स्क्रीन पे कब देखने का मौका मिलेगा। आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, और फर्स्ट टाइम जब ऑडियंस देखेगी तो आप पहले मैसेज होता है? Well, go and watch the film in your nearby theaters. That's the only message that I want to give. Enjoy the film and tell us कि कैसी लगी, कैसी नहीं। तो इंडिपेंडेंट फिल्में बहुत ही रेयर आती हैं, और ये बहुत ही लाइक ऐसी फिल्म है कि जो बहुत मेहनत से बनी है, सब मतलब हालांकि सारी फिल्में बनती है मेहनत से, बट इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो हालांकि अब तक आपको नहीं मिला होगा, जो हमको देखने को इंडिया में पहली बार। तो बहुत ही कॉमिक फिल्म है और आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो 15 मई को ज़रूर जाइएगा नियर बाय सिनेमा में देखने। थैंक यू। मज़ा लोगों को दिखेगा स्क्रीन पर। क्या कुछ अलग है, क्या कुछ स्पेशल है इसमें? कॉमेडी भरपूर है, और जॉम्बीज़ की कहानी भी काफ़ी सालों से आई नहीं। आई थिंक गो गॉन थी लास्ट, और अब आ रही है। अब काफ़ी लोग बनाना चाह रहे हैं जॉम्बी की, लेकिन हमारी पहली है, और ये कैंपस के अंदर है, तो कॉलेज का ह्यूमर भी मिलेगा और जॉम्बीज़ का वो हॉरर भी मिलेगा, और साथ ही साथ हॉरर कॉमेडी का मिश्रण मिलेगा। जैसे कि आपने कहा थी जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, ये अलग कॉम्बिनेशन लगा, ऐसा लगा कि लोग इसे भी पसंद कर पाएंगे। नहीं, लोग पसंद करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि ह्यूमर बहुत ही हटके है और एक से एक आर्टिस्ट है। आप देखेंगे सबका काम बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगता है फ्रेश बातें हैं।
children and all the kids are really, they look up to her, they kind of fancy her. Everybody's infatuated by her, but she's not just typical sex symbol. She's also someone who has a lot of agency. She's the one who gives suggestions, who सबको motivate करती है, सबको encourage करती है. So she's a woman with power and substance, who's also pegged as someone who's very, fancied in the college. So I love that about that character. जैसे कि आपने कहा हॉरर कॉमेडी है, हमने आपकी मूवी में जितना आपका रोल देखा है जॉनर में, वो कॉमेडी नहीं रहता, मेन कैरेक्टर रहता है, कुछ सेंसिटिव कैरेक्टर रहता है. क्या बोला आपने, कुछ बोलिए. जैसे आपने कहा हॉरर कॉमेडी है, आज तक आपको जितने भी जॉनर में देखे मूवी, ज़्यादा कॉमेडी आप करते दिखाई नहीं देते. हाँ. आपका सेंसिटिव कैरेक्टर रहता है, जी. मेन कैरेक्टर जी. थोड़ा स्ट्रिक्ट रोल रहता है, भले आश्रम देखिए, जी. क्रिमिनल देखिए, जी. ये अलग है कैरेक्टर, ये कैसे आपने चूज किया? यार ऑनेस्टली देखा जाए तो ये भी वैसे तो सीरियस ही है लेकिन उसका स्पेस कॉमिक है. एंड मैंने कोशिश की है, लाइक मैंने गगन और आलोक से ये काम करने से पहले भी यही बोला था कि मुझे कुछ अलग करने को मिलेगा क्या, लाइक वेर इन आई कैन, मेरा रोल सीरियस है, वहाँ बच्चे लोग जो हैं मेरे स्टूडेंट्स वो सब कर रहे हैं मस्ती, बट मैं उनको बाबा ट्रैक पे लाती हूँ. बट मैंने वो कोशिश की है कि उसको जितना भी एक सुर उसका कॉमिक में मैं कर सकूँ, जैसे डरना भी या उसके जो एक लहजा है कैरेक्टर का, वो थोड़ा सा उसमें कॉमिक टाइमिंग लाने की कोशिश की है. अब कितनी सफलता मिली है ये तो देखकर ही पता चलेगा. कॉमेडी करना इजी लगा आपको या फिर डिफिकल्ट? क्या कॉमेडी करना, आई थिंक मुझे लगता है कि कॉमेडी अपने में बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट है, बट मुझे अभी तक फुल फ्लेजेड कॉमेडी करने का मौका मिला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. ये थोड़ा बहुत है, वहाँ एक शुरुआत है. इसके पहले मैंने कभी शायद कॉमिक थोड़ा बहुत मेरे मेज क्रेज की धरती में एक छोटा सा उसमें एक स्पेस रहा था. बट हाँ, आई थिंक अपना मज़ा, आई थिंक कॉमेडी में क्या होता है ना कि आपके आसपास जो लोग हैं आपको कितना उनके साथ एक मिलता है टाइमिंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स सी. मैं लास्ट एक फैशन शो आप बैंकॉक के, तो उसमें आपकी मम्मी आई थी सपोर्ट करने, आप इमोशनल हो गए थे. आज आपके पापा हैं जी. कैसा लगा? क्योंकि आपने उस टाइम भी मैं ही थी, उस टाइम आपने कहा था कि मैं ज़्यादा पेरेंट्स को लेकर नहीं जाती. हाँ, के सामने मैंने वो पिक्चर्स लेने मेरा मन था, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी मुश्किल है उनको लेकर आना यहाँ वहाँ, और मुझे पहले स्ट्राइक भी नहीं करता था. बहुत सारी स्क्रीनिंग्स में आज तक मैं कभी अपने पेरेंट्स को लेकर ही नहीं गई थी. अब मैंने चालू किया है इधर में पिछले 1-2 साल से कि अब देयर इज़ अ स्क्रीनिंग, आई मेक एन एफर्ट. माई मदर कुडंट कम टुडे, बट इट फील्स वेरी नाइस या, बिकॉज उन लोगों को एक मैं इन चीज़ों को बहुत पहले बड़ा नहीं मानती थी कि स्क्रीनिंग हो रही है, ऐसा है वैसा है. मुझे बस लगता है कि लेकिन उनके लिए वो एक बहुत खुशी का माहौल होता है. सो या इट जस्ट फील्स वेरी नाइस फॉर देम टू बी हियर. एंड इसीलिए मैं पहले आई थिंक हम बहुत ऐसे हेसिटेट कर जाती हूँ कि मीडिया के सामने सब कुछ खड़ा करो, बट लेकिन आज मैंने बोला कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट अ फैमिली पिक्चर बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी. इवन जेंजी इसमें काफ़ी यंगस्टर्स है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यंगस्टर्स यहाँ पे जेंजीज है, वो जो सिनेमा का जो कल्चर है वो किस प्रकार चेंज कर सकती है आपके हिसाब से? वो सिनेमा का क्या जो कल्चर है, एक अलग हाँ. टोन बैठ गया है सिनेमा का, वो किस प्रकार चेंज कर सकती है? आई थिंक जेंजीज अपने मूड में रहते हैं बहुत, यहाँ जो स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं वो सब जेंजीज नहीं हैं, तो एक मिक्स था. और वो भी बहुत मतलब हम लोग सब ऐसा लग रहा था कि जैसे आज आलोक और गगन भी हैं, वो बॉयज़ ही बन जाते थे सब ग्रुप के साथ, तो एक बहुत वैसा माहौल हो जाता था. आई थिंक इट्स मोर देन द जेंजी फैक्टर, इट्स मोर अबाउट कमिंग विद दैट एटीट्यूड ऑफ टेकिंग थिंग्स in a sprightly manner, going with the flow, being sure of what you want. As long as लोग अपने क्राफ्ट को लेके सीरियस हों, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी तो जनरेशन बाय जनरेशन सब अपनी तरह से काम करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेहनत करके आए तो खुशी होती है और अच्छा लगता है, और ऊपर वाला उसकी मेहनत का फल उसको देगा. कहने कहीं कितना एक्टिंग में इंटेक दिया आपने, कुछ बताया, ऐसे इनपुट्स दिए? हमने बहुत पहले बताया था उसको, जब वो इसमें इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहा था एक्टिंग लाइन में, तो मैंने उसको पहले दे दिया. उसको पहले असिस्टेंट किया, उसमें रेडी था, और उसके बाद में धीरे धीरे करता रहा. तो मैंने उसको बेसिक बताया कि एक्टिंग होता है, तो ध्यान रखना पड़ता है, सीखना होता है. एक्टिंग हमेशा सीखना होता है, किसी को आता नहीं है. जब तक है करते रहो, आपको सीखना ही होता है, समझना होता है. तो यही बोला कि बस लर्न एंड लर्न.
सर आज के दौर में हंसाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि इतना सारा कंटेंट हो गया है, ह्यूमर भी आजकल बहुत बदल गया है। हाँ। तो एक कॉमेडी भी अपने आप में बहुत मुश्किल था, आजकल और ज़्यादा हो गया, उस पर कैसे आप बिल्कुल मुश्किल है, उसमें भी स्टडी करनी होती है। जितना आप स्टडी करोगे, जितना उसके बारे में समझोगे, तो उसके आप काम करोगे। तो मेहनत तो है, मेहनत अगर नहीं है तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। अब ऐसे कर लोगे तो कुछ नहीं। तो मेहनत से जो चीज़ निकलती है इसी में कुछ बात नहीं। एंड कहीं ना कहीं आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा रुझान देते, तो आप क्या कहेंगे उसको? वो अपना काम करें, अपना काम करते हैं, हम अपना हिसाब से करते हैं। वो करते हमारे अपने लोग हैं, वो आते हैं, देखने जाते हैं। तो हम अपनी ऑडियंस है जिनको उनको पता है, मैं जब भी आऊँगा उनके लिए कुछ लाता हूँ। जब आपको बताया कि आपको भी इसी इंडस्ट्री में आना है, तब आपकी राय क्या है? हाँ जी, जब जैसी लीवर ने आपको जेबी लीवर जी ने बताया कि उन्हें भी इसी इंडस्ट्री में आना है, तब आपकी राय क्या है? पहले मुझे समझ में नहीं आया। पहले ये लोग आना भी नहीं चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे। अचानक उनको भी कुछ झटका आ गया। तो अगर उनमें टैलेंट है तो मैं रोक नहीं सकता। टैलेंट बिलोंग टू ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर की तरफ से है ना। टैलेंट गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, तो उनकी तरफ से अगर है, सचमुच दम है, बात है, तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। मैंने सपोर्ट किया, हाँ भाई करो, क्या वो करते गए। जैसी लीवर जी ने कहा, आपने उनको एक सलाह दी थी कि हर डायरेक्टर के साथ काम करो। हाँ हाँ, और ऐसा क्या कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने या फिर अलर्ट किया था या फिर सलाह दी थी? नहीं उनको कुछ नहीं, बस बताइए। मैं कहा आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने मास्टर्स किए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताया कि बेटा समझ के काम करो, एंजॉय करो। क्या आप अपने फैंस से अपील करेंगे कि ये मूवी देखें ज़रूर? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा मेरे बेटे के लिए मैं ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर देखें मूवी, और मेरे बेटे का हौसला बढ़ाइए। बड़ी मेहनत से उन लोगों ने, उनके डायरेक्टर भी बड़े अच्छे हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं भी मिला हूँ, जस्ट भी मिला, मैं उनसे कभी नहीं मिला। तो वो उन सबका पहली बार उन्होंने किया है, बहुत मेहनत से। मेरे बेटे ने कहा कि बहुत मेहनत से, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। तो इसलिए मैं कहूँगा ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, यंगस्टर्स है जो बच्चे लोग हैं वो ज़्यादा है इसमें। हाँ। तो आपको क्या लगता है जेन ज़ी जो है वो किस प्रकार इंडस्ट्री को चेंज कर सकती है? हाँ डेफिनेटली। तो हर कुछ सालों बाद न्यू जनरेशन आती है, उनके अंदर से कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, कुछ बदलाव आता रहता है। ये जीवन वो धारा है जो बंद के रह ना पाए। इंडस्ट्री भी एक धारा है, समझे कि नहीं, वो आते रहते लेकिन सर एक टाइम के बाद आर्टिस्ट का जब धीरे धीरे फेम थोड़ा कम हो जाता है, एक टाइम के बाद आर्टिस्ट जब पुराना जाता है, किसी किसी का धीरे धीरे फेम कम हो जाता है, काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे राजपाल सिंह की बात करें, हाँ। उनके साथ हुआ। तो आपको क्या लगता है कि नहीं, ये देखिए समय अच्छा बुरा, राजपाल जी की बात कर रहे हैं, शादी हुआ था, अमित जी इतने बड़े हैं, इतने समझदार हैं, वो कुछ नहीं, समय किसी को नहीं छोड़ता। समय अच्छा बुरा आता है, लेकिन फलदार पेड़ जो होता है, फल दिए बगैर रहेगा नहीं। समय आता जाता है, और वो कैसे आता है, क्या आता है, नहीं मालूम। और हमेशा हम लोगों को, जैसे अमित जी है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हाँ इतने बड़े आदमी के साथ हो सकता है, तो हमारा क्या हो, संभाल के रहो भाई। तो हम सीखते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से अमित जी पीछे खड़े हो गए, तो हम भी खड़े हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। At the same time, I'm a bit of nervous as well because it is like seeing yourself on 70 screen. So a little bit excited, bit of nervousness. It's like a mixed bag of feelings, I would say. लीड रोल में रहना, वो भी इतने सारे आर्टिस्ट। Yeah, exactly, and especially when you have some great actors around you, like we have Jesse, Ranjan Raj is there, Shantanu is there, Anupriya is there. So we have some amazing bunch of actors in this movie, and this genre is coming after so long. 20 saal baad there is a movie coming up on zombies, so super duper excited. I'm just looking forward to it, and I want everybody to see the movie. Please go watch IIZ on 15th of May onwards. हॉरर है, कॉमेडी है, कितना डिफिकल्ट था हॉरर है, कॉमेडी? सो मैंने लास्ट जो मूवी की थी भूल भुलैया 3, और उसके बाद एक चतुर्नार, दोनों कॉमेडी जॉनर की थी, बट भूल भुलैया 3 वाज हॉरर कॉमेडी. सो टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, दिस इज़ ऑल्सो हॉरर कॉमेडी. So I think I have a very strong grip on that genre now, because after working in so many films in the same genre, you get that grip.
So I am I'll say इतना बहुत difficult नहीं था, but playing that character was a little different job. क्योंकि Kiran is someone I am not. The character Kiran is really not near to me. She is a little bubbly, she is very, you know, a little cracked from mind. She laughs on serious situations. She is a college campus student. So I am not that kind of a girl. So I'll say the character was difficult. Other than that, the genre I completely enjoyed. So yeah. रिसेंटली भूत बंगला भी रिलीज हुई थी, काफ़ी Yeah. अच्छा सक्सेस देखा। Yeah. कितना पॉजिटिव देखा, ये आपकी मूवी भी आ रही है, कहने के सेम जॉनरा है, कहने के हॉरर कॉमेडी टाइप है, ज़ॉम्बी कॉमेडी है, तो कितना पॉजिटिव देखा? So I saw Bhoot Bangla here itself. Actually, premiere was there only, right? Bhoot Bangla मैं यहीं पे ही आई थी देखने, and I saw the movie, and honestly, I just want to praise Rajpal Yadav ji for that movie. Like the kind of work he has done in this movie, every frame, like it's amazing. Something I can literally praise for. And there's no competition, guys. There's no competition with Bhoot Bangla. I feel the genres are a little different as well. Bhoot Bangla was horror. This is more of zombies. So, and it's a college campus story. That was a family story. So there's no competition. Thank you so much. Thank you.